Psychophysical methods investigate the relationship between the physical stimulus and the psychological experience. But this experience of perceiving things in the environment or within ourselves happens through a physiological process. So, what is the physiology of perception? There are two approaches to study of relationship between perception and human experience, between perception and the physical stimulus, between human experience and objects in the environment. One approach is called psychophysical, which is indicated by PP here, and the other is called the physiological approach, and there are two aspects of physiological approach. The psychophysical approach goes from stimulus to the experience and action. The physiological approach one goes from the stimuli to the physiological processes. आपने एक सेब देखा है या एक दरख्त देखा है या एक आवाज़ सुनी है, उससे आपके ब्रेन में क्या हो रहा होगा? आपको कोई चीज़ टच की है तो फिजियोलॉजिकली क्या होगा? एक्सपीरियंस तो हम बाद में करते हैं ना, पहले तो वो ट्रांसमिट होती है हमारी सेंसेस के ज़रिए। तो ये फिजियोलॉजिकल अप्रोच है। और फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू ये है कि वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो भी हो रहे होते हैं, फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स है, कोई एक्शन पोटेंशियल है, अंदर जो केमिस्ट्री हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो रहे हैं, उसको परसीव करते हुए सेंसेस के ज़रिए, वो फिर परसेप्शन में कैसे बदलते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल का दूसरा एरो है जो कि फिर आपके एक्सपीरियंस की तरफ जाता है। Psychophysical relationship between stimuli and perception, physiological one between stimuli and physiological processes, and physiological approach two relationship between physiological processes and perception. इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस के ज़रिए जो हमारे नर्वस सिस्टम में होती हैं, बट इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व studying anatomy or chemical processes. Stimulus physiology, PH1, measuring how different colored lights result in electrical activity generated in the neuron in a cat's cortex. That's an example of stimulus to physiology. Physiology perception approach, a person's brain activity is measured as the person describes the color of an object he is seeing. So अगर वो रेड कलर देख रहा है और वो कह रहा है कि ये रेड है, तो उस वक्त ब्रेन के किस हिस्से में एक्टिविटी हो रही है। तो ये इसका मतलब है अब आप एक्टिविटी से परसेप्शन तक पुल बना रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, एरो लेके जा रहे हैं। और जब आप फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टिमुलस से लेके आ रहे हैं एरो, तो फिर आप कोई चीज़ दिखा के देखते हैं न्यूरॉन में क्या एक्टिविटी हो रही है। सो दिस इज a bit of description of how we do this. The last one is when we are mapping the brain when he's saying red, and the one above that, B, is when cat is looking at red and we are saying कि brain में कौन से neurons fire कर रहे हैं, that's physiological approach 1, and the psychophysical is that we show them red and we ask them what is the color you see. Some notable ideas and events regarding the physiological workings of the mind from early philosophers to contemporary scientists. The understanding of physiology of brain has become more detailed, more advanced. That does not necessarily mean that we know more about how mind works. तो हमें इसकी फिजियोलॉजी का बहुत डिटेल में अब साइंटिफिक नॉलेज स्टडी किया जा रहा है, लेकिन माइंड कैसे काम करता है ये हमें पूरी तरह अभी भी नहीं पता. So early ideas, as we can see, Aristotle thought that all the sensations are in the heart, and people coming after that, Galton in 2nd century thought brain के कुछ areas में है, and then we moved on where Descartes thought कि और तो कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ brain में ही है, I think therefore I am.
and the ideas are moving on, and then we see that brain के two hemisphere discover हो रहे हैं, and then Golgi by coloring the neurons found the structure of the neuron, and we move on, and then we see the single neuron encoding कैसे होती है, और अब जो modern है अब हमें उसका जो neural structure है और response है वो भी हमें पता है. फिजियोलॉजी और परसेप्शन में अगर ब्रेन को देखा जाए तो इसके अंदर 4 लोब्स नजर आती हैं: parietal lobe, frontal lobe, temporal lobe, and occipital lobe. Each lobe functions, processes the information from our sense organs. The parietal lobe is for skin senses, occipital lobe is for vision, temporal lobe is for the hearing, and frontal lobe is for integrating all this and for memory. So, as we have just seen in the brain diagram, the frontal lobe integrates the sensory functions. It receives signals from all the other functions. आपको याद भी आ जाता है ऐसी चीज़ आपने पहले कहाँ चखी थी. ये टच जो है ये किसी सख्त चीज़ का है या नरम चीज़ का है, ठंडा है या गर्म है, लेकिन ये ठंडा गर्म जो है ये पानी है या कोई और लिक्विड है, या ये कपड़ा जो है ये कौन सा है, ये सब आपके मेमोरी के अंदर चीज़ें स्टोर्ड होती हैं. तो आपकी बाकी सेंसेस से और बाकी लोब से जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलती है, फ्रंटल लोब उसको जमा करके इंटेग्रेट करके और उससे कोई सूरत बनाती है परसेप्शन की. इसीलिए फ्रंटल लोब जो है ये हमारे यहाँ के इस एरिया में होती है. अगर ब्रेन ऐसे हो तो ये इधर होती है. ये सबसे अहम है और इसके डैमेज जो है वो मेमोरी और लर्निंग के डैमेज में रिजल्ट करता है. ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है जो कि गोल्की ने स्टडी किया था और ये सेल बॉडी को शो कर रहा है यहाँ पे. न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो क्रिएट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को. वो और दूसरे न्यूरॉन से भी कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि न्यूरॉन तो एक सिंगल सेल है और एक न्यूरॉन जो है वो पास ऑन करते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक पहुंचाता है. अगर मेरे यहाँ पे एक चूंटी रिंग रही है तो वो जैसे जैसे चलती जाएगी न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन पता चलती जाएगी. हर न्यूरॉन फायर कर रहा होगा. नाउ इट्स नो लॉन्गर हियर, इट्स हियर. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू डिटेक्ट कि हमें किस जगह खुजली हो रही है या किस जगह मच्छर बैठा है या किस जगह चूंटी रिंग रही है, because the neurons are firing and now this has stopped because वो वहाँ से गुजर गई है. So ये कंडक्शन आपस में भी होती है न्यूरॉन्स की और ब्रेन को भी होती है. न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं: सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट. We will discuss and elaborate this further. सेल बॉडी में मैकेनिज्म्स होते हैं जो सेल को जिंदा रखते हैं. डेंड्राइट्स उसकी ब्रांचेस होती हैं, वो सेल बॉडी से आगे ब्रांच आउट करती हैं शाखों की तरह और वो रिसीव करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और एक्सॉन से और नर्व फाइबर से. और जो एक्सॉन है जिसको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं उसमें फ्लूइड होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंडक्ट करता है. सो दिस इज द बॉडी ऑफ द neuron. As you can see, there is cell body, there is axon or nerve fiber on one side. On the right side, the dendrite जो है वो शाखें सी हैं जो कि दरख्त की शाखों की तरह काफ़ी सारी फैली हुई हैं और एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जो है सेल की बॉडी से बीच में थोड़ा सा एक स्पेस होती है. ये जो स्पेस है इसमें से आपका इलेक्ट्रिकल करंट जंप करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर जो है वो आगे जाता है. स्टिमुलस आ रहा है एनवायरनमेंट से, रेड एरो, इट रीचेस द टच रिसेप्टर योर फिंगर्स. वहाँ के जो नर्व फाइबर हैं वो सेल बॉडी पे जंप करके वो पहुंचाते हैं और फिर वो एक्सॉन में जाते हैं एंड इट कीप्स कनेक्टिंग टू अदर नर्व सेल्स. इस बेसिक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं. कुछ के एक्सॉन्स लंबे होते हैं, किसी के शॉर्ट होते हैं और किसी के कुछ भी नहीं होते. इसीलिए परसेप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा टाइप ऑफ न्यूरॉन है जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को. जैसे प्रेशर फॉर टच को कोई और रिस्पॉन्ड करता है, कलर को, मूवमेंट को. राइट को हिलने वाले के लिए कोई और न्यूरॉन फायर कर रहा होता है और लेफ्ट को हिलने वाले के लिए कोई और कर रहा होता है.
तो ये इतनी मल्टीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जितने लाखों करोड़ों सेल आपको चाहिए, न्यूरॉन्स चाहिए, वो सब मिल के एक पिक्चर बनाते हैं जो आपका ब्रेन जो है फिर परसीव करता है. सो इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस. दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन फॉर वेरियस सेंसेस. A, vision, B, hearing, C, touch, D, smell, and E, taste. As you can see, under the microscope, they appear very different. ऐसे लग रहा है जैसे किसी कार्टून मूवी के अंदर डिफरेंट एलियन कैरेक्टर्स हों. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट्स हाउ आर physiology of neuron is built up. It's very complicated, it's very specialized, and it works in specialized ways to bring us information about the environment because the whole system is run through a network.